Okay, so we were in the second chapter of export marketing of semester 5, and this was the topic which we have to complete it today, right? This topic is related to the regional integration of countries. Now, if you please don't unmute yourself unless it is not required. Now you can raise your hand if you want to speak something. I will unmute you. Okay. Now, regional integration of countries means a kind of alliance among the countries. The countries who are neighboring to one another, they would try to do good business with each other by removing some trade barriers. So they come together, and that is called as regional integration of countries. We have learned one topic, trade barriers, right? In the start of the second chapter, trade barriers means the obstacles which come on the path of the trading activities. There are two neighboring countries, they want to do business of exporting and importing for benefit of each other, but due to these trade barriers, due to these rules and regulations, they are not in a position to serve the purpose. So what they do, these two neighboring countries, they come together, they sign one agreement, and they promise to each other that they are going to remove the trade barriers to certain extent, and that is called as regional integration of countries. Now, it may not be the case of only two countries. There may be some other countries also in the neighboring area. They also will join them. They will also become the part of this regional integration, and they will also enjoy the benefit of removal of the trade barriers. Right? WTO, World Trade Organization, have suggested such type of alliances among the countries. It says that when you are going to have such type of alliances among you, you are going to enjoy many kinds of benefits. So that is all about the regional integration of countries. Now we are going to understand the what are the various kinds of agreements which are taking place. Now here we are having a small meaning. Whatever we have discussed, the same thing is explained over here, that economic integration is a group of countries that come together for enhancing trade and development. They want to enhance, they want to increase trade and development, and because of that, they have come together. And the member countries encourage trade within the group by removing or reducing trade barriers. Either they remove it to certain extent, or they reduce it See, there are certain type of taxes which are not charged from all kinds of countries, but they are charged for the non-member countries. So either they remove the particular trade barrier, or they reduce the trade barrier, because now the condition which we are going through, the pandemic situation where all countries have gone through, every country is suffering from economic crisis, including India. So now whatever agreement we are having with the neighboring countries, when we are importing goods from them, we are charging some taxes on that. The taxes which we have already removed in previous year, but now we are charging to certain extent so that some income can be generated. Similar way, when these countries are importing goods from us, they are charging some taxes on us. So previously they have removed those taxes, but now they are charging depending upon the economic situation. Again, after 6 months or after 1 year, again that may be removed. So that depends upon the group, because nobody is going to impose the rule on you. It is the countries who are forming the alliance to frame the terms and condition, to frame the policies for each and everyone. And यहाँ पे एक और important चीज दिया हुआ है, they may discriminate against non-members by collectively imposing common external barrier. This is very dangerous. This is going to be the problem for the countries who are not the member of any alliance. For example, India is member of one alliance, right? India is a member.
So when India is member, India is going to enjoy all the benefits, whatever they are going to give to the members, like removing or reducing of trade barriers. And apart from that, other facilities also will be provided. But at the same time, if India is not the member of any trade integration, then those countries will collectively impose common external barrier on India. For example, India wants to do business with country A, and country A is a member of one alliance where 7, 8 countries are there. India is having good relation with A. A wants to purchase goods from India at concessional rate or by charging low amount of taxes and all. But since A country is a member of one alliance where other 8 countries are there, and these 8 countries are not in favor of India, वो हमारे खिलाफ हैं, तो वो बाकी के जो 8 countries हैं वो A को क्या कहेंगे, डोंट परचेस गुड्स फ्रॉम इंडिया. If you are purchasing goods from India, then these are the taxes which you have to charge, and forcefully A, though that country does not want to impose additional taxes on India, it will charge additional taxes because of this collectively imposing common external barrier. So that is very dangerous. When you are member of any economic integration or integrated group, you are going to enjoy all the benefits, all the advantages which are there. But at the same time, if you are not the member, then discrimination will happen to you. आपके साथ ये भेदभाव किया जाएगा और कलेक्टिवली सारे के सारे मेंबर्स मिलके आपके ऊपर impose कर देंगे वो rules and regulations. So economic integration is having its own advantages and its own disadvantages. So this is called as economic integration. और इसके लिए हम लोगों ने एक वर्ड सीखा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही, trading block, BLOC. Trading block. Trading block means the agreement of certain countries of removing certain barriers to conduct the work of trade in a very smooth manner. That is called as trading block or economic integration. Now let us understand what are the various kinds of agreements which are taking place, which is the strongest one and which is the lowest one. Now, this next slide is going to give you the differential features or differential types of agreement. Now, here you can see that there are 5 columns, right? And here on left hand side, you can see certain names are given. These are the names of agreements. ये agreement के नाम हैं और countries चाहे तो किसी भी तरीके के agreement में वो जा सकते हैं. And whenever any agreement or especially for this economic integration, when the agreement is taking place, these are the 4 conditions or 4 terms which are mentioned in the agreement. ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले आप टाइटल्स देख रहे हैं ना, प्रेफरेंशियल टीए, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, ये टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स हैं. आपकी कंट्री या दूसरे कंट्रीज मिलके इनमें से किसी भी एक तरह के एग्रीमेंट में जा सकते हैं. और ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 कंडीशंस हैं जो आपके एग्रीमेंट का पार्ट बन जाती हैं. राइट नाउ वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज प्रेफरेंशियल टीए. Here TA stands for trade arrangements. I will just write it over here for your reference. Trade arrangements. TA stands for trade arrangements. Students यहाँ पे mistake कर लेते हैं, वो लोग trade agreement लिख देते हैं. Because in your export marketing, no, there is one question where you have to write full form of certain abbreviations. So this PTA may be, the short form, and you have to write the full form of that. That is called as preferential trade arrangement. This is the, you can say, having the lowest ranking in the economic integration agreements. जितने भी economic integration के agreements होते हैं, ये जो है preferential trade arrangement, इसे सबसे कम वाला वैल्यू दिया गया है, सबसे कम.
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो चार कंडीशंस हैं, इसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, और वो भी पार्शली। इसके लिए यहां पे लिखा हुआ है यस, पार्शली। That means out of these four conditions, only one condition is mentioned in this arrangement between the countries or among the countries, and that too partially. What is the name of this? That is removal of trade barriers. That means when preferential trade arrangement take place, countries come together, they sign one agreement, and they promise to one another that we are going to reduce trade barriers to certain extent. पूरे के पूरे ट्रेड बैरियर्स खत्म नहीं किए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेप्टा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस सेप्टा। आपने सार्क सुना है ना, सार्क, जहां पे 7 कंट्रीज हैं और अफगानिस्तान इज द 8th कंट्री। ओके, सार्क ने ये एक अरेंजमेंट बनाया है, दीज 8 कंट्रीज हैव मेड दिस अरेंजमेंट, और इसका फुल फॉर्म है, सेप्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। आई होप आपको ये याद रहेगा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। ये जो 8 कंट्रीज हैं, इन्होंने सार्क तो साइन किया ही है, एक और भी एग्रीमेंट है सेप्टा नाम का, और वहां पे इन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो किसी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो सेकेंड कंडीशन है, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर, ये नहीं है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी नहीं है, और कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज भी नहीं है। तो 4 कंडीशंस जो इसेंशियल कंडीशंस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में होने चाहिए, उसमें से 3 तो आउटराइटली उन्होंने कैंसिल ही कर दिया कि ये नहीं चाहिए हम लोगों को, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ पहली वाली कंडीशन उन्होंने कुछ हद तक रखी, और वो भी पार्शली। इसके लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स को सबसे कम और सबसे लोएस्ट वैल्यू वाला अरेंजमेंट कहा जाता है, राइट? सो इफ somebody is asking you which is having the lowest value of economic integration, that is called as preferential trade arrangement. Are you understanding this? हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह के एग्रीमेंट्स हैं और ये किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, right? I have turned off my camera because it is taking a lot of internet, you can say the consumption, and because of that my net is getting hanged in between. That's the reason I just turned it off, so that I can focus on lecture and lecture will go in a very smooth manner. That is the only reason I have turned it off. Somebody have put that message in the chat box. Okay, so I hope you have understood this preferential trade arrangement. आपको ये बात समझ आ गई? प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट जो है एक तरह का एग्रीमेंट है जिसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट है। क्यों लोएस्ट है? क्योंकि 4 में से वो सिर्फ एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो भी पार्शली, और बाकी चीजों को नहीं। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड area. Free trade area is having a little more value as compared to preferential trade arrangements, because in free trade area among the countries all the trade barriers are removed, all, पूरे तरीके से इसको खत्म किया जाता है। इसके पहले वाला जो एग्रीमेंट था वहां पे पार्शली ट्रेड बैरियर्स खत्म किए जाते हैं, पर यहाँ पे पूरे तरीके से, मतलब जितने भी इस एग्रीमेंट में आ जाती हैं कंट्रीज, वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाते हैं। दे नेवर इम्पोज टेरिफ बैरियर और नॉन टेरिफ बैरियर, नेवर, किसी भी तरीके का नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है, जो बिजनेस होता है इन कंट्रीज के बीच में वो काफी चीप हो जाता है, रीजनेबल हो जाता है। लेट अस से 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, इन दोनों ने मिलके फ्री ट्रेड एरिया नाम का एग्रीमेंट कर दिया। उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर जो भी ट्रेड बैरियर्स है वो कंप्लीटली हटा दिए। इसका मतलब जब कंट्री ए बी को गुड्स बेचेगा तो बी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा और किसी भी तरीके का नॉन टेरिफ बैरियर नहीं लगाएगा। तो ए के लिए तो अच्छा खासा
एक चांस मिल गया ना बी में अपना बिजनेस करने का, वो भी कम रेट पे, क्योंकि टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो उनके रेट्स तो कम हो जाएंगे, ज्यादा चीजें सेल कर पाएंगे। नाउ सिमिलरली इफ बी वांट्स टू डू बिजनेस विथ ए विल नॉट इम्पोज एनी रूल ऑन दैट, वो कभी भी उसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं करेगा, राइट। तो ये हो जाता है फ्री ट्रेड एरिया वेयर ऑल द मेंबर कंट्रीज आर रिमूविंग all kinds of trade barriers, but they may be having their own individual policies for doing other business। अगर इन दो कंट्रीज को दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस करना है तो वो इंडिविजुअली करेंगे, मतलब बी ए को फोर्स नहीं करेगा कि तू ये कंट्री से ही चीजें खरीदेगा दूसरे कंट्री से नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उनके एग्रीमेंट में है ही नहीं। ये है ना एक्सटर्नल बैरियर, राइट, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर, जब वो पॉइंट नहीं है, इसका मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी मर्जी से जहां चाहे बिजनेस कर सकते हैं, दूसरे मेंबर उसे फोर्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना ट्रेड इकोनॉमिक का, कि कंट्री इंडिया बिजनेस करना चाहता है कंट्री ए के साथ, पर दूसरे कंट्रीज उसे अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग ए कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और उन्होंने फ्री ट्रेड एरिया में एंट्री किया हुआ है ए ने, तो बाकी के कंट्रीज उसे फोर्स नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम ये जो लेबर वगैरह है या जो मनी है वो आसानी से ट्रांसफर नहीं की जाएगी, आपको लीगल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। if you want to send your workers, if you want to send your own people to work in that other country where you are having this agreement, you cannot send them freely। आपकी आजादी नहीं है कि जब मर्जी चाहे हम अपने लोगों को भेज देंगे वहां काम करने के लिए, जब मर्जी चाहे हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नो, यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए हटाए गए हैं? सिर्फ ट्रेड के लिए। सिर्फ जो चीजें खरीदी या बेची जाएंगी, केवल उन चीजों के लिए यहाँ पे वो रूल हटाया गया है, पर बाकी सारी चीजों के लिए अभी भी वो बंदिश रहेगी उसके ऊपर। तो ये सेकेंड कैटेगरी का एक तरह का एग्रीमेंट है जो फर्स्ट वाले से थोड़ा सा लिबरल है। फर्स्ट में ट्रेड बैरियर्स पार्शली हटाए जाते हैं, पर यहाँ पे तो कंप्लीटली हटाया गया, किसी भी तरीके का टेरिफ बैरियर या नॉन टेरिफ बैरियर इसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। देन द थर्ड वन इज कस्टम्स यूनियन। Customs union is a type of arrangement or type of agreement among the countries where they are removing the trade barriers and at the same time they have common external policy. Common external policy means they do not have individual imposition of rule. For example, ए बी सी, ये तीन कंट्रीज हैं ए बी सी, इन्होंने कस्टम्स यूनियन के एग्रीमेंट में एंटर कर लिया। तो इनका क्या होगा, ये तीन कंट्रीज आपस में ट्रेड बैरियर्स हटा देंगे, पर जब भी इन तीन कंट्रीज को दूसरे कंट्री से बिजनेस करना पड़ेगा ना, तो एक दूसरे से पूछना पड़ेगा। ए कंट्री अगर किसी और कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहता है तो ए बी और सी से सलाह लेगा, उनको पूछेगा कि क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं उसके साथ। अगर बी और सी यस बोलते हैं तो वो बिजनेस कर सकता है, अगर नो बोलेंगे तो वो नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड एज कॉमन एक्सटर्नल बैरियर। दैट मीन्स दीज कंट्रीज टुगेदर they are imposing barriers on other countries, that is called as common external barrier। इसके पहले वाले जो दो एग्रीमेंट थे वहां पे इंटरफेरेंस नहीं था बाकी कंट्रीज का, इंडिविजुअली कंट्रीज अपना काम कर रहे थे क्योंकि उनका एग्रीमेंट का नाम डिफरेंट था। पर क्योंकि वो कस्टम्स यूनियन नाम के एग्रीमेंट में आ गए हैं तो उनके लिए अभी ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया और इन्होंने ये वाला एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। इसका एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, एक बार ना एक यूरोपियन कॉमन यूनियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था समवेयर इन द ईयर 1957। 1957, क्योंकि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था वो 1945 में खत्म हुआ था। तो उसके बाद तुरंत डब्ल्यूटीओ ने कहा था कि आपको आपस में आके ये लड़ाई वड़ाई सब खत्म करनी है और जितना हो सके आपस में अच्छे ट्रेड रिलेशंस बना दो। तो कस्टम्स यूनियन कम से कम 10-12 साल बाद आया। दैट मीन्स अराउंड 1955 1957 में कस्टम्स यूनियन बनाए गए थे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, और वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलके ये एग्रीमेंट बनाया था।
तो in fact we can say that this customs union have become the strongest type of agreement in those days. 1950s में ये strongest type का agreement कहा जाता था, क्योंकि जितने भी कंट्री साथ में आ जाते थे वो आपस के बिना सलाह किए हुए किसी और के साथ बिजनेस करते ही नहीं थे, क्योंकि ये एग्रीमेंट उनके साथ था। रोम में ये एग्रीमेंट हुआ था एंड इटली वाज द कंट्री व्हिच वाज लीडिंग विद दिस। ये यूरोप का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीमेंट माना जाता था उस समय का। तो ये हो जाता है कस्टम्स यूनियन, जो अभी इनके बाद हाईएस्ट रैंक में आता है। लोएस्ट रैंक में कौन सा था? प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, जहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और वो कंडीशन भी पार्शली होती है, बाकी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। Under free trade area, one condition is completely followed, but other conditions are not there. That means individually they are having their own rules to apply for other countries. There is no free movement of labor and capital. There is no common policies. But still, free trade area is a little stronger than preferential trade arrangements. But customs union is even stronger than free trade area, because over here the countries are adding one more condition, that is common external barrier. ये लोग क्या करते हैं, अगर बिजनेस करना है किसी एक कंट्री को ग्रुप में से, तो बाकी कंट्रीज की परमिशन के बिना वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो जाता है कस्टम्स यूनियन। और ये जो जिसकी मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, वो एग्रीमेंट डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में ही था। तो जाहिर सी बात है, अगर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में रहेगा तो ये लोग पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग मना करते हैं नहीं, इसके साथ बिजनेस नहीं करना है, इसके साथ ही बिजनेस करना है। तो ये जो है एक तरीके से थोड़ा सा रोक भी बन गया था। पर इन कंट्रीज के बीच में जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था, ये लोग फ्लरिश होने लगे, इनका बिजनेस बहुत बढ़ गया, इकोनॉमी हद से ज्यादा डेवलप होने लगी थी इस समय से। Okay, so these two conditions are not there in this type of agreement. Then after that, the next one is common market. Common market is the agreement where you are having completely removal of trade barriers. You are having common external barriers. That means all together, or whoever are the member in this particular agreement, all these members collectively they put burden on entire world, and they have free movement of labor as well as capital. इनके बीच में लेबर और कैपिटल का फ्री मूवमेंट होता है। मतलब ऑफ कोर्स परमिशन तो लेते ही हैं, पर वीजा वगैरह लेना या कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा रूल्स को फॉलो करना वो सब नहीं है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर किसी एक कंट्री के लोगों को नौकरी चाहिए दूसरे कंट्री में, तो बस परमिशन लेके वो चले जाते हैं और आराम से अपनी कंट्री में जब चाहे वापस भी आ जाते हैं। तो फ्री मूवमेंट है, क्योंकि इन्होंने वो आपस में वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो ये जो था ये भी एक बार यूरोपियन मार्केट में ही आया था, क्योंकि आपने ईयू के बारे में सुना ना, इकोनॉमिक यूनियन, सॉरी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना है, जो आज की डेट में स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीमेंट है। यूरोपियन यूनियन पहले कॉमन मार्केट ही हुआ करता था, पहले उसका नाम कॉमन मार्केट था, यूरोपियन कॉमन मार्केट, ईसीएम, यूरोपियन कॉमन मार्केट। उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 इज कंप्लीटली रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, आपके जो ट्रेड बैरियर्स है वो कंप्लीटली रिमूव्ड है। देन एक्सटर्नल बैरियर्स है, सब लोग मिलके बार्गेनिंग करते हैं पूरी वर्ल्ड के साथ, एंड देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर एंड कैपिटल। बट एज फार एज कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज आर कंसर्न, स्टिल इट वाज नॉट देयर। सभी कंट्रीज अपनी अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करते हैं और वो लोग अपना ही कॉमन पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे वो फोर्स नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला एग्रीमेंट है, इकोनॉमिक यूनियन, this is called as the strongest type of agreement, because over here all countries are removing the trade barriers completely. They have the external barrier for other countries. There is free movement of capital as well as labor, and all these countries are having even common economic policies. इनकी जो economic policies हैं वो भी common होती हैं। मतलब कितनी सारी सिमिलैरिटीज आ गई।
है ना, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है इनके। यहाँ पे अगर कोई मेंबर बन गया ना, तो उनके साथ मतलब इकोनॉमी तो आपकी डेवलप होगी ही होगी, बट बाकी कंट्रीज के लिए इनजस्टिस हो जाता है। आपने शायद सुना भी होगा कुछ साल पहले, आई थिंक 2018 और 19 में यूके ने कहा कि मुझे इस एग्रीमेंट में नहीं रहना। ये जो ईयू करके हमारा एक एग्रीमेंट है, ईयू, यूरोपियन यूनियन, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे यूके ने अपने हाथ पीछे ले लिया और यूके ने कहा कि मुझे आपका मेंबर नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज में उनकी अनबन हो रही थी। मतलब यूके का पॉलिसी डिफरेंट था और बाकी कंट्रीज का पॉलिसी डिफरेंट था। अब क्योंकि वो एग्रीमेंट में बैठ नहीं रहा था, तो यूके पीछे चला गया कि मुझे आपका पार्ट नहीं बनना है। तो कई बार ना ये थोड़ा नुकसान भी देता है मेंबर्स को, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें से ज्यादा फायदा होता है। और ये जो कंट्रीज हैं या यूरोपियन यूनियन में या इकोनॉमिक यूनियन एग्रीमेंट में, these are the strong countries, very developed countries, and these days they are dominating the world। ये पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब जैसा ये चाहेंगे पूरी वर्ल्ड के लोगों को बिजनेस में वैसा करना पड़ता है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज काफी स्ट्रांग है। राइट, तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर हम लोग रैंकिंग देने बैठे यहाँ पे, तो फर्स्ट रैंक हम लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन को, और ये जो है प्रेफरेंशियल को, इसको लास्ट देना है और लोएस्ट रेट। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा दैट व्हिच काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द लोएस्ट वन। सो योर आंसर शुड बी व्हाट? प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स है जिसको लोएस्ट लेवल दिया गया है, लोएस्ट रैंकिंग दी गई है। और हाईएस्ट रैंकिंग किसे दी गई है? इकोनॉमिक यूनियन को, बिकॉज ओवर हियर ऑल फोर कंडीशंस व्हिच आर टू बी देयर आर देयर इन दैट। ये आज की डेट की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 5 या 10 साल में एक और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टाइप आ जाए जहां पे एक और कंडीशन हो जाएगी, तो फिर ये पीछे हो जाएगा, इकोनॉमिक यूनियन पीछे हो जाएगा। वो जो दूसरा वाला है जो नया आएगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग ओनली वन। तो ये टाइम के साथ साथ डेवलप होता रहता है। पहले पहले आए प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स, उसके बाद आया फ्री ट्रेड एरिया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि पार्शली रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, पूरे तरीके से रिमूव कर देते हैं। फिर उनको लगा कि नहीं, इसके साथ साथ ना हम लोग कलेक्टिवली आपस में मिलके काम करेंगे, तो कस्टम्स यूनियन आ गया। फिर इनको लगने लगा कि नहीं, हम लोग हमारे लोगों को और कैपिटल को फ्री इन्वेस्ट करने का परमिशन देना चाहिए, तो कॉमन मार्केट आ गया। फिर इन सबको लगने लगा कि नहीं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी सेम होनी चाहिए, तो इकोनॉमिक यूनियन आ गया। तो ये स्लोली स्लोली टाइम के हिसाब से डेवलप होते गया है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको ये याद रहेगा व्हाट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Economic integration means when countries come together in form of a group for removal of certain trade barriers and for the smooth functioning of the export and import business. And these are the different features, or you can say different types of integration. There are 5 types of integration, and there are 4 kinds of conditions or terms. तो ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे, ये उसके फीचर पॉइंट्स आ जाएंगे। आपको ये हर एक चीज लिखना पड़ेगा, दैट प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट में क्या क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये आपको समझ आया? सेप्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए बैरियर नहीं है, प्रेफरेंशियल, और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए बैरियर्स हैं। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो इसमें सार्क में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अगर बात करेंगे, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके यहाँ पे फूड का शॉर्टेज होता है ज्यादातर। तो जब वो फूड का एग्रीमेंट, मतलब फूड हमसे खरीदते हैं, तब ज्यादा टैक्सेस नहीं चार्ज करते हैं, क्योंकि उसको प्रेफरेंस दिया गया है फूड को। लेकिन अगर हम लोग बाकी की चीजें उनको बेचेंगे, तो उसके ऊपर वो टैक्स लगा देंगे, क्योंकि बाकी की चीजों उन्होंने प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। इसके लिए उसको कहा जाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट।
सर्टेन थिंग्स विच आर एक्सप्लेन, उसके ऊपर ट्रेड बैरियर नहीं है, और बाकी चीजों के लिए ट्रेड बैरियर होता है। फ्री ट्रेड एरिया में कंप्लीटली जो बैरियर्स है वो हटाए जाते हैं, है ना। जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगी, मतलब आराम से आप बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं। इज इट ओके? हैव यू अंडरस्टूड दैट? Okay, so with this, I just stop sharing the screen.